سب سے پہلے ہمارے چینل یس انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس وقت ہم آپ سے ایک اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں. جس طرح لاک ڈاؤن ہوا اور لاک ڈاؤن کے بعد بہت ساری ہر شعبے کو جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا, اور خاص کر ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے, اسکولز بند کیے گئے, آن لائن کے نام پر کلاسز جاری ہیں, لیکن اتنا فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے جس قدر کلاس روم سے یا بچہ اسکول جا کر جو حاصل کر سکتا تھا وہ نہیں آ رہا ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں والدین کی ذمہ داری بڑھ گئی. تو ہر والدین کا وہ کردار نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. اب یہ کئی والدین کے لیے اکثریت میں اگر دیکھا جائے تو والدین کی ایک نئی چیز ہے. تو اس کو لے کر آپ ڈائٹ کالج کے لیکچرر کی ایسی خدمات انجام دے رہے ہیں, آپ کا تعلیمی شعبے سے جڑی ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت گھریلو خواتین, عام وہ چاہے گھر چار دیواری کے اندر رہنے والی ہو یا کسی پیشے سے نہیں باہر جا کر کام کرنے والی خاتون ہو, کسی بھی شعبے کی کیوں نہ ہو, تو اس وقت خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے بچوں کی تربیت کو لے کر؟ بچے سارا دن جو ہیں گھر پر ہیں, یا تو شیطانیاں کر رہے ہیں, یا پھر موبائل میں مگن ہیں, یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یا پھر آپ ایک اندازہ بول رہی ہوں میں, دھارواڑ شہر کے اندر سائیکلز جو بکے, جی چھڈا شاید کروڑ پتی ہو گئے, جی سائیکل چلا رہے ہیں گلیوں میں بچے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ماؤں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور باپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی اوقات بھر کم از کم پڑھا دیں. جی پڑھنا لکھنا جو ہے بچے کا اس عمر میں, چاہے وہ 3 سال کا ہو یا 10ویں کلاس کا بچہ ہو, بہت ضروری ہے. 1 سال کا بغیر تعلیم سے جڑے رہنا جو ہے نقصان دہ ثابت ہوگا. اگر آپ اردو نہیں پڑھا سکتے, انگریزی پڑھائیے. اگر آپ انگریزی نہیں پڑھا سکتے, کنڑی پڑھا سکتے ہیں, کنڑی پڑھائیے. کچھ بھی نہیں آتا آپ کو, لین دین کا اگر کچھ شعور ہے, کاروباری شخصیت آپ ہیں, تو حساب کے جو بنیادی اعمال ہیں وہ پڑھائیے. یا کچھ نہیں بھی ہوتا تو کم سے کم ایسے قصے یا کہانیاں سنائیے جس کے اندر اخلاقی پہلو, مورلس. تو یہ اگر مائیں گھر میں بیٹھ کر کرتی ہیں, یا پھر قرآن شریف مکمل کرواتی ہیں, یا پھر دین کے اسباق دیتی ہیں, تو میرے خیال سے بچوں کی ذہنی تربیت اس وقت ہم بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. لاک ڈاؤن ایک حساب سے اگر ہمیں عذاب کی صورت آیا ہے, تو لاک ڈاؤن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ باشعور مائیں اپنی بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کر سکتی ہیں, اور اپنا جو اثر یا رسوخ ہے اسے مثبت انداز میں اختیار کرتے ہوئے, بچے کو بوجھ نہ سمجھتے ہوئے یہ سارا دن میرا جان کھا رہا ہے, کھانے کو مانگ رہا ہے, یا کھیلنے جا رہا ہے, مجھے ستا رہا ہے, یہ نہ سمجھتے ہوئے بچے کو یہ موقع دیں کہ بچہ جو ہے وہ کچھ سیکھے. نہیں ہے کے نام پر اساتذہ کو گھروں گھروں تک بھیجا جا رہا ہے تاکہ ایسے بچوں کو پڑھا سکیں جو جن کے پاس موبائل نہیں ہے یا جن کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. ٹیچرز جا رہے ہیں. ودیا گما کا ایک پروگرام چلا جی, جس کے اندر ٹیچرز جو ہے ہمارے جو عاشور خانے ہیں, یا مساجد کے کٹے ہیں, یا پھر منادر ہیں, یا پھر کوئی شادی محل ہے, وہاں پر قریب میں موجود کلاس کی تفریق نہیں ہے, جماعت کی تفریق نہیں ہے. مطلب یہ پہلی جماعت کا, دوسری جماعت کا, یہ عام چیزیں پڑھا رہے ہیں. میں یہاں پر آپ کو روک رہا ہوں کہ ایک اسکول کا ہم نے معائنہ کیا, میں نے خود وہاں پر دیکھا کہ بچوں کو اسکول بلایا جا رہا ہے, اور اسکول کے باہر بٹا کر, آنگن میں بٹا کر, یہ آنگن بھی نہیں ہے, وہاں پر روڈ ہے, وہ اسکول کے سامنے ایک مین روڈ ہے, اس کے سامنے اسکول کا جو چھوٹا سا 3-4 فٹ کا جو جگہ ہے, وہاں پر بچوں کو بٹا کر ان کا ہوم ورک وغیرہ چیک کیا جائے. لیکن کہیں نہ کہیں غلط ہے. یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ اسکوٹر پر بائکس جو کھڑی ہیں بازار میں, وہاں ایک باپردہ خاتون کھڑی ہیں اور ہوم ورک چیک کر رہی ہیں بچوں کا. بچے بازار میں آئے ہوئے ہیں, یہ بھی منظر نظر آیا. اور اس کی وجہ سے ہاسن ڈسٹرکٹ کے اندر ایک المیہ ہو گیا. ایک ٹیچر کو خود کووڈ تھا اور وہ 25 بچوں کو پڑھا رہی تھی, اور 25 بچوں کو بھی کووڈ ہو گیا.
उनको एडमिट करना पड़ा और टीचर का इंतकाल हो गया। टीचर के साथ उसके शौहर का भी इंतकाल हो गया, जिसके लिए कुमार स्वामी जो है वो इस पर बैठे स्ट्राइक पर, और वो विद्यागमा का प्रोग्राम फिलहाल जो है मुलतवी कर दिया गया। मेरा ये मानना है कि अगर क्लासरूम्स हमारे कुशादा है, स्कूल शुरू ही करना है तो आप शुरू कीजिए स्कूल। सिर्फ तादाद जो है आज अगर आपकी 30 है तो आज के दिन जो है 10 बच्चे बुलाइए, कल के दिन 10 बच्चे बुलाइए। तो उन 10 बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो मेंटेन भी करके गाइडेंस है उसके हिसाब से पढ़ा सकती है। विद्यागमा का प्रोग्राम जो है अक्टूबर 10 तारीख के बाद में बंद कर दिया गया, उस टीचर जोड़े की मौत के बाद। और अभी जो है ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, खासकर प्राइवेट स्कूल वाले तो 4 घंटे ऑनलाइन क्लास देते हैं। आप सोचिए 6 साल का बच्चा है, 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल देख रहा है, तो उसके रेडिएशन की वजह से बच्चे का ज़हनी नुकसान जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो मुतासर होंगे या आंखें जो मुतासर होंगे, उसका जिम्मेदार होगा। हल्के उभर आए हैं बच्चों की आंखों के नीचे, मैंने देखा। अब ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जिन पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं था पहले, अब उनको कंपलसरी स्कूल वाले ये एडवाइस कर रहे हैं कि वो स्मार्टफोन खरीदें। विद्यागमा जो है जिनके पास फोन नहीं, उन बच्चों के लिए। लेकिन ऐसा प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि तुम एक स्मार्टफोन खरीदो तो हमें ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है। तो जिनके पास नहीं था वो बच्चे भी जो है फोन लेकर घूम रहे हैं। सही, लेकिन उसका सही फायदा तो होता नहीं होता। कहीं गेम खेल रहे हैं या पबजी खेल रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, गलत चीजें भी बच्चे देख रहे हैं, ये मैं मान रही हूँ इसकी बात। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है सरकार से हो या अवाम से हो कि पब्लिक का प्रेशर जो है वो हुकूमत पर ये जाए कि इस साल को 0 ईयर डिक्लेयर कर दिया जाए और माँ बाप से ही दरख्वास्त की जाए कि आपकी औलाद है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी तालीम और तरबियत जो है आप घरों पर करें। हमारे पूरे माँ बाप जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरी कौम की बात कर रही हूँ, बहुत सी माएँ पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन माँ खुद एक इंस्टीट्यूट होती है, उसके पास कुछ ना कुछ हुनर ऐसा होता है जो वो अपने बच्चे को सिखा सकता है। खानादारी के कई उमूर होते हैं, सिलाई है, कढ़ाई है या कुछ और लेकिन अक्सर माएँ तो खानादारी से दूर हैं आज, क्योंकि पार्सल का जो सिस्टम आ गया, वो चाहे स्विगी हो, जोमेटो हो, ऑर्डर करने वाला जो शहरों में सिस्टम ज्यादा हो गया है। गरीबी भी है, हमारी गरीबी अपनी जगह है। हाँ, एक छोटे से छोटा मजदूर भी आज ऑर्डर करके खाने वाले मामले हम शहरों में देख रहे हैं। ये कस्बात का मामला अपनी जगह है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को जब माएँ ही इससे खानादारी के इस तजुर्बे से जो नावाकिफियत हैं रखते हैं तो बच्चों को नहीं दे सकते। और सिलाई वाला जो मामला है या स्वेटर बुनने, जो कुछ भी जो घरेलू पहले नुस्खे हुआ करते थे जो औरतें किया, आज तो उनसे काफी दूर है। खुद खवातीन मोबाइल की एडिक्ट हो चुकी है। सही। तो इस मामले को किस तरह से हम हल कर सकते हैं? ये हमारा अलमिया है कि हम अपनी तहजीब की वो नाफे चीज़ों से दूर हो रहे हैं कि जो हम अपने मुस्तकबिल के लिए जो हम दिया करते थे। अरे खाना पकाने वाली चीज़ है, मैं ये नहीं समझती कि लड़कियों तक महदूद रखा जाए, लड़कों को भी इस चीज़ में माहिर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं वो कल नौकरी के लिए चले जाते हैं तो बच्चा इतना खुद कफील हो कि खुद अपना खाना बनाकर खा सके। तो इसलिए माँ अगर किचन की भी कुछ चीज़ें सिखाती है या घरेलू मेंटेनेंस, घर किस तरह मेंटेन किया जाए, सफाई किस तरह बनाई रखी जाए, या दीन की कुछ बातें सिखा सकती है, तो मेरे ख्याल से इस वक्त को हम पॉजिटिव तौर, मस्बित तौर पर अच्छे काम के लिए, सुधार के लिए ले सकते हैं। तो ये मेरा पैगाम है कि माएँ अपने पास, कोई भी बंदा बेकार नहीं पैदा होता, भले वो अनपढ़ क्यों ना हो, उसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो जिसके बल पर वो खड़ा होता है और जो दूसरों को दे सकता है। ये अता है अल्लाह ताला की। अगर किसी के पास कुछ भी चीज है, बागबानी है, खेत में बोयाई है, बाप किसान है, बच्चे को ले जाए, वो सिखाए उसको चीजें। तो इस तरह हम क्या है बच्चों को अपने मसरूफ रख सकते हैं और बच्चों को कुछ ना कुछ नया सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि स्कूल में जाकर ही किताबें पढ़ी जाए,
वही टीचर से गालियाँ भी खाई जाएं, वही टीचर से असबाब भी सुन। मैंने ऑनलाइन क्लासेस की क्वालिटी भी देखी है। मुझे खुद शर्म आ रही है कि इंग्लिश मीडियम के टीचर्स को अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, उर्दू मीडियम के टीचर्स को उर्दू बोलना नहीं आता, कन्नड़ी मीडियम के टीचर्स को कन्नड़ी बोलना नहीं आता। ये मैंने ऑनलाइन क्लासेस में देखा है। शहर की सबसे मशहूर स्कूल जो है हमारे अंग्रेज़ी मीडियम की, उनके टीचर्स का तलफ़ुज़ इतना ख़राब है कि मुझे लगा कि मेरा बच्चा पता नहीं यहाँ से कैसे निकल गया। मैं सोची शायद मैंने इसे अच्छा पढ़ाया होगा इसलिए बच्चा अच्छा निकला। तो ये भी है कि मियार गिर कुल मिलाकर हम पूरा डिपेंड टीचर्स पर अब तक थे, अब नहीं हो सकता। इस मौके को गनीमत जानते हुए पेरेंट्स को बच्चे की तरफ तवज्जो देनी होगी। बच्चा वालिदैन की जिम्मेदारी, ये मेरा मानना। बच्चा टीचर की जिम्मेदारी नहीं, बच्चे की तालीम और तरबियत जो है वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगर मेरे वालिदैन आज भी ये समझ लें, सोच लें कि बच्चे की तालीम और तरबियत मेरी जिम्मेदारी है, तो हमारे समाज में इनकलाब आ सकता है। ये बात मैं कहना चाहूँगी। पूरा स्कूल पर डिपेंड और बड़ी स्कूल्स के ऊपर इनका मिडिल स्कूल में एडमिशन करके ये समझते हैं कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन। नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि कई प्राइमरी स्कूल्स के, कई सरकारी स्कूलों से बहुत अच्छे तलबा पढ़ने वाले तलबा के आला मकाम पर पहुंच चुके हैं। तो ये ज़हनियत भी कहीं ना कहीं हमें खत्म करनी है, और खत्म हो रही होती जा रही है, खत्म होती जा रही। तो अब तो इम्कानात, आखिरी सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब तो इम्कानात नहीं है कि स्कूल्स खुलेंगे, ये एकेडमिक ईयर को जीरो बताया जाएगा। तो क्या जो बच्चे, मिसाल के तौर पर अगर 5वीं जमात में कोई बच्चा है तो क्या वो अगली जमात में जाएगा अगले साल, या फिर नहीं, अगली जमात। 0 ईयर का मतलब ही यही है कि बगैर किसी इम्तिहान के बुनियादी सलाहियतों के बेस पर, बुनियादी सलाहियत मतलब 4 अर्थमेटिक, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसको हम 3 R's कहते हैं, तो इनको बुनियादी तौर पर यानी बेसिक्स उसका जांच कर बच्चे को अगली क्लास में दाखिल कर दिया जाएगा, और इसको 0 ईयर डिक्लेयर करके अगला ईयर जो है अपने पोर्शन के हिसाब से जो है ज्यादा कर दिया जाएगा, ताकि बच्चे के अंदर वो जो छूटी हुई सलाहियतें हैं उनको बेदार किया जा सके। और अगला साल मेरे ख्याल से नई कौमी तालीमी पॉलिसी आएगी, जहाँ पर स्कूल्स का वो जो मियार है वो बिल्कुल तब्दील कर दिया जाएगा। LKG, UKG और पहली क्लास को 3 साल की बुनियाद, बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो रखा जाएगा। चौथी 5वीं जो है वो उसको अलग से निसाब दिया जाएगा। 6ठी से लेकर 8वीं तक अलग निसाब दिया जाएगा। इसको हम हायर प्राइमरी कहेंगे, ये एलिमेंट्री स्कूल कहेंगे 5वीं तक। फिर उसके बाद 9वीं क्लास के अंदर सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए जाएंगे। मतलब आप साइंस सेक्शन में जाना चाहते हो तो 9वीं क्लास में चले जाओगे। अगर आप आर्ट्स में जाना चाहते हो 9वीं क्लास में जाओगे। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हो तो 9वीं क्लास में जाओगे। अगर आप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करना चाहते हो, ITI है, 9वीं क्लास से आपको वहाँ पहले जैसा PUC का सिस्टम हुआ था, SSLC के बाद वाला जो शोबों को हमें चूज करते थे, वो हम अभी नवीं नहम जमात में कर लेंगे। अब 9वीं 10वीं PUC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ये 4 साल को हम इंटरमीडिएट करेंगे। तो ये निसाब आएगा। 10th की जो बोर्ड एग्जाम है वो खत्म कर दी जाएगी, और PUC की एग्जाम जो है वो बोर्ड एग्जाम होगी, और बच्चे का मियार वहाँ खुलकर नजर आएगा। अगर असातिज़ा बुनियादी तौर पर मेहनत नहीं करेंगे तो PUC के नताइज इतने ख़राब निकलेंगे कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। असातिज़ा अगर एलिमेंट्री एजुकेशन पर या प्राइमरी एजुकेशन पर मेहनत करेंगे तो बच्चे 9th में जाकर सब्जेक्ट को डिवाइड करके अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लेने के हकदार बन सकते हैं। अगर हमारी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन फेल होती है तो हमारा ये मंसूबा भी फेल हो जाएगा। ये मेरा ऐसा कहना है। और नई तालीमी कौमी पॉलिसी के हिसाब से असातिज़ा का बहुत मेहनत करना और असातिज़ा के जहन को, मुतालिए को वसी करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम नुकसान में रहेंगे। जिस तरह की एक नई पॉलिसी को आपने बताया कि इस तरह से होने वाला है, आपने LKG से लेकर BA तक क्या सिस्टम होने वाला है, इसके इम्कानात भी आपने बताया, और हो भी सकता है आने वाले दिनों में नई पॉलिसी को यही सारी चीजें सामने आएंगी। 2021 से लागू किया। तो इसमें आपने एक बहुत अहम बात कही कि इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं फिर वालिदैन पर
वालिदैन पर भी आती है, और असातिज़ा प्राइमरी टीचर्स की जो प्राइमरी हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ से शुरू होती है, तो वो तबका अब तक बेहिस नजर आता है। तो अभी उनको तनख्वाह फ्री में मिल रही है, क्योंकि एसएसएलसी का बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो फिर सीधे हम जो है पीयूसी में आएंगे, और पीयूसी में आने के बाद बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सिस्टम मैंने बताया आपको फेल हो जाएगा। प्राइमरी तो असातिज़ा इन असातिज़ा को कैसे मजबूत कर सकते हैं आप? बहुत सारे जो है उनके सेमिनार्स वगैरह मुनक्किद करते हैं, आप वहाँ पर जाकर उनको काफी सारी चीजें बताती हैं, ट्रेनिंग्स देती हैं, तो आप महसूस करती हैं कि तकरीबन एक 90% हिस्सा जो है असातिज़ा का ऐसा है बेहिस है, और वो एसडीएमसी हो या फिर अपने ऑफिशियल काम को लेकर ही बहुत ज्यादा मसरूफ नजर आते हैं। बच्चों की तालीमी मेयार को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, वो किस तरह से वो सोच कम है। तो इनको जब तक हम नहीं जगाएंगे, नई पॉलिसी में हम कामयाब नहीं हो सकते, वो चाहे उर्दू मीडियम हो, कन्नड़ मीडियम हो, और जबान हो सकता है। तो प्राइमरी असातिज़ा को मैं दोबारा कह रही हूँ, असरे नो मेहनत करनी है, वरना गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी है, ऐसे असातिज़ा को 10 साल के अंदर रिटायर कर दिया जाए। हाँ, ये कुछ होना चाहिए, ऐसी कुछ सख्तियों की जरूरत है। 10 साल आपको मौका दिया जाएगा गवर्नमेंट सर्विस में रहने का। अगर आपने अपनी वो कामयाबी या अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं नहीं दिखाई, तो आपको 10 साल के बाद घर भेज दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि तालीम मियारी हो, और तालीम का मियार इतना बुलंद हो कि हमारी आज मेडिकल डिग्री हो या इंजीनियरिंग डिग्री हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में कबूल नहीं की जाती, तो वहाँ जाकर उनकी एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अब हम यहाँ से BE की डिग्री लेकर भी जा रहे हैं, तो हमें बहैसियत इंजीनियर काम करने नहीं दिया जाएगा, वहाँ 2 साल जाकर उस इंजीनियरिंग की बेसिक्स हमको दोबारा सीखनी होगी, फिर तब जाके कहीं हमें बहैसियत इंजीनियर वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। दुबई की हालत बता दूँ मैं आपको, वहाँ पर आपके जब तक 2 मास्टर्स या 1 PhD नहीं होती, आपको किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में पढ़ाने का मौका नहीं मिलता। डॉक्टर भी यहाँ से चला जाए तो वहाँ की अपनी एक एग्ज़ाम सिस्टम है, जहाँ पर उनको वो एग्ज़ाम, हुकूमती एग्ज़ाम को देकर पास होना है, फिर उसके बाद जो है डिग्री लेनी है, और वो इम्तिहान इतनी सख्त होती है कि यहाँ के गेट और नीट भी उसके सामने फेल हो जाते हैं। तो ये मियार वहाँ रखा गया है, तो उस मियार तक अगर हमारे बच्चे को पहुँचाना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल प्राइमरी असातिज़ा की जिम्मेदारी बनती है कि वो बहुत मेहनत करें और ईमानदारी से मेहनत करें। तनख्वाहें कम नहीं है प्राइमरी स्कूल टीचर की, बेसिक सी 40,000 निसाब से हटकर दीगर किताबों की तरफ इनका मुताले की तरफ इनका रुझान होना चाहिए। नहीं, बहुत होना चाहिए। जहन को इतना वसी कर लेना है कि आपको 50 साल आगे के बच्चे की किस्मत को देखना है, और यहाँ आज मेहनत करनी है। किसी भी मीडियम से हो, अगर अंग्रेजी हो, कन्नड़ हो, अगर आप उस मीडियम के उस्ताद हैं, तो आपको सबसे पहले उस जबान पर अच्छा उबूर हासिल होना चाहिए। लेकिन वही जो है हम कमी महसूस कर रहे हैं, टीचर का बोलना जो है उनके जबान में वो कशिश नहीं हम महसूस करते, तो वो बच्चे को किस तरह से तालीम दे सकते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। तो एक 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे, एक निष्ठा है गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्रोग्राम, और दूसरी जो है ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। ये 2 तरबियतें चल रही हैं। अगर टीचर्स छुट्टियों में या अपने खाली वक्त में अपना मियार बढ़ाना चाहते हैं, तो इन दोनों ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और ख़ुद पर मेहनत करके अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट बढ़ाकर वो एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। ये कोशिश, उम्मीदें तो यही हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी पॉलिसियाँ आएंगी और जो भी हमारी जो खामियां हैं वो खूबियों में बदल जाएंगी। आपकी मेहनतें हैं, हम भी अपनी जगह जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए, यस इंडिया के लिए टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।